Hello dear learners, welcome to the e-lecture on present perfect continuous tense. We have already studied present simple, that is present indefinite tense, present continuous or present progressive tense, and present perfect tense. In the series of lectures on tense, today we will study present perfect continuous tense. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at Government Polytechnic College, Dausa. We are studying tense in order to complete unit number 5, topic number 1 in unit number 5, which is fill in the correct form of the verb, and only after learning tense one can fill the correct form of the verb. That is why we are studying tense in detail. So let's begin our today's e-lecture. So what is the form of present perfect continuous tense? This tense is formed by have or has plus been plus verb plus ing. So in the perfect continuous tense, it is a combination of perfect and continuous tense. सो परफेक्ट टेंस से हमने हैज़ हैव लिया है और कॉन्टिन्यूस से हमने वर्ब प्लस आईएनजी लिया है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को कंबाइन करने के लिए हम इसमें बीन को यूज़ करते हैं. सो हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. सो दिस इज द फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन present perfect continuous tense. The negative is formed by putting not after have or has. Present perfect continuous tense में negative sentences बनाने के लिए हम not यूज़ करेंगे, और not को हम जो हमारी first primary auxiliary है that is has और have के बाद में लिखेंगे. तो ये बन जाएगा हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. सो दिस इज हाउ वी मेक नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. द इंटेरोगेटिव इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग हैव और हैज़ बिफोर द सब्जेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी है हैज़ और हैव को लिखा जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. सो दिस इज द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. लेट्स एनालाइज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस थ्रू टेबल. So in this table there are affirmative sentences and their negatives. So how the first sentence is formed, let's look at it. I have been playing. So हमारी primary auxiliary है यहाँ पर have plus been plus verb that is play plus ing. So this is how we use present perfect continuous tense in affirmative sentences. इस अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी है दैट इज़ हैव, उसके जस्ट बाद हम नॉट लिखेंगे, और नॉट के बाद में बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. सो इट विल बिकम आई हैव नॉट बीन प्लेइंग. नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैव बीन प्लेइंग. नाउ हैव हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज वी क्या है, एक प्लूरल प्रोनाउन है. प्लूरल्स के साथ हैव यूज़ किया जाएगा और सिंगुलर्स के साथ में हैज़ यूज़ किया जाएगा. सो वी हैव बीन प्लेइंग अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम लिखेंगे वी हैव नॉट बीन प्लेइंग. यू हैव बीन प्लेइंग, और इसका नेगेटिव बनेगा यू हैव नॉट बीन प्लेइंग. ही हैज़ बीन प्लेइंग. She has been playing. It has been playing. He, she, it थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, इसीलिए ऑक्सिलरी हैज़ यूज़ हुआ है. नेगेटिव भी हम उसी तरीके से बनाएंगे. He has not been playing. She has not been playing. It has not been playing.
नेक्स्ट, दे हैव बीन प्लेइंग, नेगेटिव बनेगा दे हैव नॉट बीन प्लेइंग. राम हैज़ बीन प्लेइंग, राम सिंगुलर नाउन है इसीलिए हम हैज़ यूज़ कर रहे हैं. सो राम हैज़ बीन प्लेइंग, नेगेटिव बनेगा राम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग. बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग, बॉयज़ यहाँ पर प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ हम हैव यूज़ करते हैं. सो बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग विल चेंज इनटू बॉयज़ हैव नॉट बीन playing. So I hope with this table it is clear to you what is the form of present perfect continuous tense in affirmative sentences and in negative sentences. So in affirmative sentences we use has, have, has or have plus been plus verb plus ing, and to form negative sentences we will use has or have plus not plus been plus verb plus ing. So this is the form of affirmative and negative sentences in present perfect continuous tense. Now let's analyze interrogative sentences and negative interrogative sentences. So for interrogative sentences we will use auxiliary has or have before the subject. तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है आई, और हमने आई से पहले ऑक्सिलरी यूज़ किया है क्योंकि हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, और सब्जेक्ट के बाद हम बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ करेंगे विद अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. सो द सेंटेंस इज हैव आई बीन प्लेइंग, और फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट देन बीन देन वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ करेंगे. तो सेंटेंस बनेगा हैव आई नॉट बीन प्लेइंग, हैव वी बीन प्लेइंग, हैव वी नॉट बीन प्लेइंग, हैव यू बीन प्लेइंग, हैव यू नॉट बीन प्लेइंग, हैज़ ही बीन प्लेइंग, हैज़ शी बीन प्लेइंग, हैज़ इट बीन प्लेइंग, has he not been playing, has she not been playing, has it not been playing, have they been playing, have they not been playing, has Ram been playing, has Ram not been playing, have boys been playing, have boys not been playing. So this is how we form interrogative sentences and negative interrogative sentences in present perfect continuous tense. Now let's analyze the uses of present perfect continuous tense. This tense is used to express an action that began in the past and is still continuing. Present perfect continuous tense का use उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जो कि शुरू पास्ट में कभी हुआ था लेकिन अभी तक चल रहा है, वो एक्शन अभी भी कंटिन्यूएशन में है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours. इट मीन्स जो एक्शन है मेरा क्रिकेट खेलने का वो 2 घंटे पहले शुरू हो चुका है और अभी तक भी चल रहा है. वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो एक्शन फिनिश नहीं हुआ है, इट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग. तो ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू होकर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. अनदर एग्जाम्पल इज़ It has been raining since morning, which means अभी तक भी बारिश हो रही है. सुबह से बारिश हो रही है मतलब सुबह को शुरू हुई थी, पास्ट में शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक भी बारिश हो रही है. It is still continuing. Another use of this tense is to express an action which is already finished but whose effect or result persists. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एक और यूज़ होता है ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि ऑलरेडी फिनिश तो हो चुका है लेकिन जिसका इफ़ेक्ट या जिसका रिजल्ट अभी तक कंटिन्यू हो रहा है.
Let's analyze the examples to understand it better. He is shivering because he has been bathing for an hour. वह कांप रहा है बिकॉज वो 1 घंटे से नहा रहा था. विच मीन्स बेदिंग वाला जो एक्शन है, नहाने वाला जो एक्शन है, वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है. लेकिन उसका इफ़ेक्ट क्या है? उसका इफ़ेक्ट ये है कि इतनी देर, इतने लंबे समय नहाने के बाद वह अब शिवर कर रहा है, कांप रहा है. अनदर एग्जाम्पल इज द बॉयज हैव बीन रनिंग राउंड द टाउन all day and are now resting. बॉयज दिन भर टाउन के चारों तरफ भाग रहे थे, रन कर रहे थे, तो ये एक्शन खत्म हो चुका है. एंड आर नाउ रेस्टिंग. नाउ मीन्स अब, लेकिन क्या हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है पूरा दिन भागने के बाद, कि अब वो रेस्ट कर रहे हैं. बॉयज आर नाउ रेस्टिंग. So to express an action which is already finished but whose effect or result persists, present perfect continuous tense is used. You need to remember it because it is a very important point कि हम present में ही किसी ऐसे action की बात कर रहे हैं जो कि ख़त्म हो चुका है, फिर भी हम उसे present tense में यूज़ कर रहे हैं. हम उसे प्रेजेंट टेंस में क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि जो उसका रिजल्ट है वो भी प्रेजेंट टेंस में ही डिस्प्ले हो रहा है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो प्रेजेंट में ही दिखाई दे रहा है. सो दीज आर द यूजेस, द मोस्ट कॉमन यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. In the next lecture, we will learn the difference between present perfect and present perfect continuous tense. What is the difference between these two and where only one can be written, only either can be written? That we will learn in the next e-lecture. Till then, keep studying and also keep revising, keep practicing, because tense is something which students have been learning since I think class 3 or 4 or 5, and you have already passed your 10th class, but the command is still not there on tense because we keep it to the rules only. We know the rules, but we do not know the application of these rules. So to learn tense better, I would recommend you all to keep revising tense, to keep using tense in your day-to-day language, so that you can master the art of writing and speaking correct English without any grammatical flaws. Thank you very much.